Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6th class, Assalamu alaikum. Today we are going to read lesson number 6 again, but we are starting with paragraph number 4. So take out your books and put your fingers on the text. I am starting reading from the 4th paragraph. Remember, first of all, I would read out paragraph number 4 in order to make you pronounce the words accurately, and then we would start translating it into simple English and Urdu as well, sentence by sentence. Now put your fingers on the text. The granny brought out a large one, scented with verbena, and Sarah tied it on gently. As soon as the hand was covered up, the child's sobs grew less. The mother said thankfully, "How lucky we were to find a nurse on the spot." In this way we have read paragraph number 4. Now we are going to translate it sentence by sentence. The granny brought out a large one, scented with verbena, and Sarah tied it on gently. Dear students, as you know, in the previous sentence, when Sarah suggested that they should apply handkerchief instead of bandage, प्यारे तलबा आपको पता होगा इससे पिछले सेंटेंस में सारा ने सजेस्ट किया था कि हमारे पास पट्टी तो नहीं है, क्यों ना हम एक रुमाल ही मिल जाए. On hearing this, the grandmother brought out a large scented with verbena handkerchief and handed it over to Sarah, and Sarah used that handkerchief as a bandage and wrapped the hand of little girl. In this particular sentence, the authoress of this lesson, Margaret Lees, wants to tell us, दादी अम्मा ने जब ये सुना कि सारा को रुमाल चाहिए, दादी अम्मा ने सागून फूल की खुशबू वाला एक बड़ा सा रुमाल सारा के हवाले कर दिया और सारा ने बड़ी आहिस्तगी के साथ, नरमी के साथ उस ज़ख्मी बच्ची के हाथ पर उसको बांध दिया. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आइसक्रीम्स के मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स होते हैं, इस तरह सेंट जो होते हैं हमारे पास उनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं. सेंटेंस नंबर 2. As soon as the hand was covered up, the child's sobs grew less. In this sentence, the writer wants to tell us, as soon as Sarah wrapped the hand of little girl, she stopped crying. जैसे ही बच्ची का हाथ जो है उस पर पट्टी कर दी गई, उसको ढाम दिया गया, तो बच्ची की सिसकियाँ थम गईं, उसने रोना बंद कर दिया. The mother said thankfully, "How lucky we were to find a nurse on the spot." The mother said with gratitude that how lucky we were to find a nurse on that very occasion. अम्मी जान ने तशक्कुराना अंदाज में कहा कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें मौका पर ही नर्स मिल गई. Now start writing difficult meanings of difficult words from the paragraph number 4. Take out your lead pencil and start writing them. Brought out, बाहर निकाला, बाहर निकालना. Scented, खुशबूदार. Verbena, सागून का फूल. Tied, बांधना, बांध दिया. Sobs, सिसकियाँ, आहें. Now we are going to read paragraph number 5. "I am a medical student," said Sarah. Then an uncomfortable sort of honesty which gave her a prod in the ribs whenever she felt like boasting made her add, "This is my first day. But my father is a doctor and I have often seen him treat injuries like this." In this way we have read paragraph number 5. Now we are going to translate it sentence by sentence. "I am a medical student," said Sarah. When Sarah realized that she was being called a nurse instead of a doctor, जब सारा को पता चला कि उसको तो नर्स कहा जा रहा है, तो उसने कहा, मैं तिब की तालबा हूँ, मैं मेडिकल की तालबा हूँ. Then an uncomfortable sort of honesty
which gave her a prod in the ribs whenever she felt like boasting. सारा ने कहा, मैं तिब की तालबा हूँ, तो ईमानदारी के एक एहसास ने उसकी पसलियों में चुभन सी पैदा कर दी, गोया कि उसने कोई शेखी भगारी हो या गप लगाई हो। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेने से एक बच्चा तिब का तालिब इल्म मेडिकल का स्टूडेंट नहीं बनता जब तक कि वो उस क्लास में आके बैठ नहीं जाता। सारा अभी मेडिकल कॉलेज में जा रही थी, तो इसलिए उसने इसको ये बात की। सारा ने मज़ीद कहा, मेड हर हेड, सारा ने मज़ीद कहा, दिस इज़ माई फर्स्ट डे, आज मेरा पहला दिन है। बट माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड आई हैव ऑफन सीन हिम ट्रीट इंजरीज लाइक दिस। देन सारा सेड, माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड शी हैज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड हर फादर वाइल ट्रीटिंग इंजरीज लाइक दैट। सारा ने कहा, लेकिन मेरे बाजान डॉक्टर हैं और मैंने अक्सर उनको ज़ख्मों का इलाज ऐसे करते हुए देखा है। Now you would write meanings of difficult words from paragraph number 5. Boasting, शेखी बगारना, गप लगाना. Injuries, plural of injury, ज़ख्म. Now we are going to read paragraph number 6 and 7 simultaneously. The granny nodded and smiled. You have good hands, my dear, and you can keep your head, you will make a doctor. Then Granny said, दादी अम्मा ने असबात में सर हिलाया, नोडेड मीन असबात में सर, हाँ में सर हिलाना, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई। यू हैव गुड हैंड्स, इससे मुराद ये नहीं है तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं, इट्स मीन यू हैव गॉट स्किलफुल हैंड्स, द वे यू ट्रीट विद योर हैंड्स इज़ रिमार्केबल, कि तुम्हारा अंदाज़ बहुत प्यारा है, तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा महारत वाले हैं, माय डियर, मेरी प्यारी। एंड यू कैन कीप योर हेड, इट्स मीन यू रिमेन काम इन एन एमरजेंसी। आपको पता होगा इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ सारा ही पुरसकून थी, काम थी, बाकी तमाम लोगों में पैनिक था, और तुम पुरसकून रहती हो। यू विल मेक अ डॉक्टर एंड वन डे यू विल सर्टेनली बी अ डॉक्टर। और दादी अम्मा ने कहा, एक दिन मुझे यकीन है कि तुम वाकई अच्छी डॉक्टर बनोगी। दादी अम्मा ने असबात में सर हिलाया और मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा अंदाज़ बहुत प्यारा है मेरी प्यारी, तुम बिल्कुल पुरसकून रहती हो, हंगामी हालत के अंदर भी एक दिन तुम ज़रूर अच्छी डॉक्टर बनोगी। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, इफ़ दीज वर द ओनली क्वालिफिकेशंस थॉट सारा हु हैड 5 लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टडी अहेड। सारा ने सोचा, अगर यही काबिलियत है अच्छे डॉक्टर बनने की, जिसने अभी आगे 5 साल मज़ीद MBBS की तालीम जारी रखना थी, जिसके बाद डॉक्टर बनना था। बट शी वुड ट्रेजर द ओल्ड लेडीज़ वर्ड्स, लेकिन वो उस बूढ़ी खातून के इन अल्फाज को ख़जाने के तौर पर लेगी। एज अ लिफ्ट फॉर लो मोमेंट्स, उदासी के लम्हात में उभरने के लिए, मतलब जब कभी वो ज़िंदगी में आगे चलकर उदास होगी तो वो बूढ़ी अम्मा के अल्फाज को याद किया करेगी और उससे वो खुश हो जाया करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. Question number 4, why did Sarah qualify her statement that she was a medical student? What made her do it? Question number 4 in fact has 2 questions in it. Part first is, सारा कैसे अपने इस बयान के अहल होती है कि वो एक मेडिकल के स्टूडेंट है। द स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू, आपको पता है स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं थी, एज शी वॉज जस्ट गोइंग टू बिगिन हर स्टडीज़, क्योंकि वो अपनी तालीम पहला दिन था उसका मेडिकल कॉलेज में और वो कॉलेज जा रही थी। व्हाट मेड हर डू इट, किसने उसको ऐसा करने पर मजबूर किया। हर सेंस ऑफ ऑनेस्टी मेड हर डू इट, उसकी ईमानदारी के एहसास ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई द चाइल्ड्स ग्रैंडमदर थॉट दैट सारा वुड मेक अ गुड डॉक्टर। अब वजाहत करें कि बच्ची की दादी अम्मा ने क्यों ऐसा कहा कि सारा एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। शी थॉट दैट सारा हैड स्किलफुल हैंड्स
and she could remain calm and clear in an emergency. वो इसलिए कहा था कि दादी मैं सोचती थी सारा के बड़े स्किलफुल हैंड्स हैं और वो एमरजेंसी में बिल्कुल पुरसुकून रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इम्प्रेशंस डू यू गेट ऑफ द करेक्टर ऑफ सारा फ्रॉम द पैसेज? इस सबक से सारा के किरदार के बारे में आपको क्या इम्प्रेशंस, क्या तासुरात, क्या क्वालिटीज़ मिलती हैं? वी गेट फ्रॉम द पैसेज दैट सारा इज़ ऑनेस्ट, सारा ईमानदार है, शाय शर्मीली है, सिंपैथेटिक हमदर्द है, काइंड है, एंड लास्टली सेंसिबल है। ओके, in this way we have completed our lesson number 6. In the end, I would suggest you to kindly consult your subject teachers and ask them to send you all these 6 questions and words meaning and word sentences so that you may start learning them by today or tomorrow. Thank you very much. Take care. Bye bye.